afternoon, everyone. My name is Saket. As my colleague said, he is one of the youngest of you guys, and I may be one of the oldest of you guys. So much before the image started, I was a part of Career Catalyst. तुम करे क्या जिससे हो? Right, sir. जबरदस्त जबरदस्त. Saket Bichpuria. Right. जबरदस्त. So you may not remember me. So a long time back. So I am a native of Patna, Patna city. आपके घर के बिल्कुल पास में. अरे जबरदस्त. और आपके अमित बिचपुरिया जो आपके he is my brother. वो मेरा दोस्त रहा है. I know that. हाँ. तो इट वॉज लॉन्ग टाइम बैक. मतलब जैसे पटना सिटी बिजनेस और बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता. पापा हमेशा चाहते थे बिजनेस में ही लगे रहो, एंड ही नेवर वांटेड टू अस टू गेट आउट फॉर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स. एंड दैट पॉइंट टाइम, सो देयर आर ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स वर लुकिंग एंड मूविंग आउट फॉर जॉब्स. Catalyst I was in 2007. 2007. So it's been 17 years here. पढ़े होंगे. Yes, actually. That is why I asked you in the group whether he is coming or not. So I am आएंगे, वो भी आएंगे. अगले Podar sir is a person that everyone would have got into his. obviously. So that was the time when one of my friend sought me to Career Catalyst, and I thought of getting into that personality development and skilling program there. करियर कैटलिस्ट ही वो बीज तत्व था जहां से सिमेज की मतलब बीज वहीं पे रोपा गया था. और हमारी बेचैनी होती थी करियर कैटलिस्ट में कि बच्चों को हमको प्लेसमेंट देना है, लेकिन 2 महीना 3 महीना 5 महीने का कोर्स होता था. तुम लोग कितना दिन का कोर्स किया था? That was a 6-month course, but I got placed in the 4th month. 4th मंथ में प्लेसमेंट मिल गया था. ऐसा होता था हम लोग के यहाँ. प्री मैच्योर डिलीवरी हम लोग कई बार कर देते थे. ठीक है. कहाँ प्लेसमेंट हुई थी? That was in ATS services. ATS, हाँ, तो वो एक कंपनी थी जो बल्क में हायरिंग करती थी, लेकिन बहुत कड़ी टास्क मास्टर थी, बहुत कड़ा काम लेती थी. हाँ, और उस जमाने में हम लोग प्लेसमेंट का ऐसा सीन होता था कि 500 600 बच्चों का इंटरव्यू करवाना था कभी कभी. और बच्चे जो हैं वो मतलब भूख से थक जाते थे सुबह से शाम तक में. तो हम लोग सामने नटराज गली से समोसा मंगवा देते थे कि लो समोसा खाओ, इंटरव्यू दो, अभी घर नहीं जाना है. The story goes before that. At that point in time, because nobody was looking out from the family that we घर से बाहर जाके जॉब करेंगे. तो उस समय somehow we came to know कि डायरेक्टर सर आपके फादर जो थे, जो पहले डायरेक्टर थे, तो अभी भी है, चेयरमैन वही है शुरू से. हाँ. तो उनसे मिलने के लिए पापा आपके घर पे गए थे, और उन्होंने somehow convince किया पापा को कि आप यहाँ पढ़ा सकते हो, और he will get a career opportunity from Career Catalyst, and that is how I joined Career Catalyst at that point in time. So it was all the influence of Neeraj Podar sir and other teachers at other faculty at that point in time. But it was not the entire schooling or entire college or entire course curriculum that you guys did in CIMIT, but it was a small program, but it was a highly effective program that helped me get a job. It was very impactful. Very impactful. At that point in time, we got placed at a near salary of about 5.5 thousand rupees at that point in time. But from there till now, so it's been 17 years working into this industry, and now I'm running my own company. Very good, excellent. So past 6 years I'm running my own company into commercial real estate. So we are running a co-working firm. So co-working essentially is a part of commercial real estate where we take up premium offices at prime locations. And चलो, तुम अपना विजिटिंग कार्ड लाए हो? कुछ विजिटिंग कार्ड लाए हो? हाँ, तो यहाँ पर कई सारे बडिंग स्टार्टअप्स होंगे, बड़े बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे. So currently they are hosting more than 150 companies, lot of large MNCs like Flipkart, ClearTrip, and all they house at our office space. Very good, excellent. So currently we are running around 14 offices across India, most of them based out of Gurgaon. So but we have got offices in Delhi, Noida as well. We are also setting up 2 centers in 2 new branches of Simage in Patna. I believe most of you are aware about it. तो जो 2 नए सिमेज की ब्रांचेस बन रहे हैं, उनमें मैं को-वर्किंग स्पेस डेवलप कर रहा हूं. अब इससे मैं अभी पूछूंगा नहीं, इसका कुछ चार्जेस होता है को-वर्किंग में. आप जो But we are doing lot of programs with lot of startups like BN University and all those, where we are helping all the startups. हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ. तो हम लोग उसमें वहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि जो कोवर्किंग स्पेस बना रहे हैं वो बहुत ही एडवांस्ड है, सारी फैसिलिटीज़ है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लुक, ओपन ऑफिस सिस्टम, पूरा मीटिंग रूम, कैफेटेरिया, सब कुछ साथ में डाला जा रहा है. और मैंने वहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं वहाँ पर 500 रुपीज़ का चार्ज लूँगा एक वर्क स्टेशन का.
तुम्हारा चार्ज यूजुअली, मुझे अनुमान लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा तो 3, 4, 5 हजार लोग चार्ज करते हैं। मिनिमम इज 9,000। 9,000, तो 9,000 रुपया पर मंथ का चार्ज है मिनिमम। और जो मैंने डिसाइड किया, कितना का चार्ज डिसाइड किया है, 500 रुपीज। वो भी मैंने नॉमिनल रखा है कि भाई फ्री में देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं दूंगा उस यूथ को, उस एंटरप्रेन्योर को जिसका कोई विजन अच्छा होगा, जिसका कोई एग्जीक्यूशन का कैपेबिलिटी होगा, जिसके अंदर थोड़ा प्लान होगा, जो मेहनत करेगा और जो मेरे सिमिज के स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम करवाएगा, और जिसका एडवांस टेक्नोलॉजी का कुछ वर्क होगा। जैसे कैसे ये सब अजूर और ये सब क्लाउड वाला है, अगर कोई बिहार में आके काम करेगा तो उसको हम 500 रुपीज पर सीट के हिसाब से एकदम एडवांस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेस देंगे कि काम करो, स्टार्टअप बनाओ और लोगों को, अच्छा उसको हम साथ में वर्क पावर भी देंगे, क्योंकि मेरा स्टूडेंट जो है उसको उसके कंपनी में सीखने को मिलेगा। तुम लोग कोई प्लान कैसा लग रहा है सुनने में? ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी जो हमारी है अभी जो हम बना रहे हैं, वो लाइब्रेरी जो अभी तक तुम सिमेज देखे हो उससे काफी बड़ी हमारी अब लाइब्रेरी बन रही है। सिर्फ लाइब्रेरी 1,65,000 स्क्वायर फीट का पाटलिपुत्रा में बन रहा है और 2,35,000 स्क्वायर फीट का पटना बाईपास रोड पे बन रहा है, विच इज ह्यूज, तुम्हारे ह्यूज। और नहीं तो 2,35 का एक हमारा है और 1,65 का एक है, तो उसमें हम लोग को वर्किंग स्पेसेस जो बना के दे रहे हैं वो भी काफी एडवांस डिजाइन, जो सर आर्किटेक्ट दिल्ली, नहीं गवर्नमेंट ऑफ बिहार को तुम छूते ही नहीं है। हाँ वहां जाके तो, हाँ नहीं, नीतीश जी के भी फैन है, मोदी जी के भी फैन है, लालू यादव के भी फैन है, तेज प्रताप के भी फैन है, हम सबके फैन हैं, समझ गए? इसलिए, लेकिन हम सब से कहते हैं कि भाई इंडिया जो है इन लोगों के कारण नहीं चलता है, इंडिया इन लोगों के बावजूद चलता है। इंडिया डोंट रन बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियन, इंडिया रन डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिशियन। ये तुम लोग चलाते हो इंडिया को, जो इंडिया का यूथ है वो इंडिया को आगे ले जाता है। नेता लोग तो कोई कसर बाकी छोड़ता है नहीं, वो तो जैसे गाय को धुआ जाता है उससे ज्यादा बुरी तरह से देश को नेता लोग धो लेता है, लेकिन इस देश को देश का नौजवान चला रहा है, वही आगे बढ़ा रहा है। एनीवेज, तो हम वहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट करके वहां पर तुम हमको हेल्प करोगे, उसका सब थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स और ड्राइंग्स तुमको दिखाएंगे हम, तुम देखना, और कैसे और ज्यादा यूजफुल हो सके। और हम लाइब्रेरी चूंकि आजकल कम यूज में आता है तो कुछ कुछ पोर्शन उसमें हम कोवर्किंग का भी डाल रहे हैं, ताकि वहीं पर किताबें भी हैं, वहीं पर कैफेटेरिया भी है, वहीं पर कोवर्किंग भी है, और थोड़ा उसको हम इनफॉर्मल स्पेस के रूप में डेवलप किए हैं। सीढ़ियां भी हैं तो इस तरह की है कि सीढ़ी पे कुशन लगा हुआ है, बैठने वाला हाइट का है। हाँ नहीं, मतलब इधर सीढ़ी है, इधर बैठने का है, इधर लैपटॉप का चार्जिंग पॉइंट है, और उसी में सीढ़ी के उसमें किताबों को रखने का भी बना हुआ है। तो बड़ा वो फैंसी टाइप का बनाया गया ड्राइंग पूरा। IIT कानपुर का जिन्होंने काम किया है उन्होंने अभी हमारा ये पूरा ड्राइंग बनाया है। तो मुझे लगता है कि एक अगला एलुमनाई मीट जो हो वो पटना में हो, और वहां तुम लोग सब कोई आओ, और वो सिमेज का जो पटना में करेंगे जब बिल्डिंग बन जाएगी। हाँ वहीं की बात कर रहे हैं। पटना के हमारी बिल्डिंग बनने पर सारे बच्चों का, सारे एलुमनाइज का आना कंपलसरी है वहां पर, क्योंकि वो बिल्डिंग तुम्हारी बिल्डिंग है। उस संडे को करेंगे हम लोग किसी। हाँ, तुम लोग सबको आना होगा, वो तुम्हारी बिल्डिंग है, उस पर तुम लोग का हक होगा। ऐसा सिमेज परिवार जो है वो अकेले मेरे का तो नहीं हो सकता है, सारे बच्चों से तो बनेगा, सारे शिक्षकों से, सारे बच्चों से, सारे कर्मचारियों से और सारे पूर्ववर्ती कर्मचारियों से, सबका उसमें योगदान है, सबका उसमें हक है। तो मैं आज तुम लोग को इनवाइट भी करूंगा, आज कर रहा हूं कि जब सिमेज की जो, या देखो 2009 बैच का बच्चा सब आया हुआ है, हाँ फर्स्ट बैच का जो बच्चा आकर के मिला है, बबलू वगैरह है, ठीक है, हाँ, तो ये सबका हक है, यही सबसे तो परिवार है। आई एम वेरी हैप्पी, साकेत, आई एम वेरी हैप्पी मीटिंग यू, वेरी हैप्पी। 2009 के बैच में नंबर जीती है। हाँ 2009 का बैच बहुत प्यारा बैच। आओ तुम हायरिंग करो और अच्छे से अच्छा बच्चा मिलेगा। तुम्हारा पेन पॉइंट हमको दो, वो मेरा गेन पॉइंट है। चलो गुड, वेरी गुड।